Good morning, students. In the lesson Structure of Atoms and Nuclei, today we will study the topic Energy of Electrons. Also, we will study the topic Rydberg's formula for the spectral line. For the topic Energy of Electrons, first we will revise the previous lecture topic, that is radius of orbits. You all know what is the formula for radius of the orbit. It is given by the equation Rn is equal to n square h square epsilon 0 divided by pi me ze square. Here Rn is known as radius of nth orbit. Rn क्या है? Radius of nth orbit of Bohr's hydrogen atom. Okay. और E क्या है? E is known as charge on electron. Charge of electron. और plus E, it is the charge on the nucleus. Z is the number of electrons in an atom. Okay. Now this is the formula for radius of the Bohr's hydrogen atom. Also we will study about the velocity of the electron. It is given by the formula Vn is equal to Ze square upon twice epsilon 0 Hn. Using these two formula, now today we will study about energy of the electron. Let's start. Now you know about energy, total energy of the electron. It is the sum of kinetic energy and potential energy. Now first we will find kinetic energy of the electron. Okay, so first step is to find the kinetic energy of the electron, because we know that the total energy of the electron, it is the sum of kinetic energy and potential energy. So first we find the kinetic energy of the electron. Okay, kinetic energy. Now suppose if me is the mass of electron and Rn is the radius of the nth orbit of hydrogen atom, radius of nth orbit of Bohr's hydrogen atom, and Z is the number of electron in the atom, then according to first Bohr's postulate, आपको first Bohr's postulate मालूम है, तो centripetal force जो है it is denoted by MEVN square upon Rn. It is always equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Ze square upon Rn square. This is Bohr's first postulate. यहाँ पे भी लिखती हूँ from Bohr's first postulate. ओके, तो यहाँ पे इप्सिलॉन 0 क्या है? इप्सिलॉन 0 इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. ME फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल राइट MEVN स्क्वायर इट इज इक्वल टू Z अपॉन 4 पाई epsilon 0 E स्क्वायर अपॉन Rn. ये Rn कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपको ये मिलेगा. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है इन द सर्कुलर ऑर्बिट हैज़ लीनियर स्पीड एंड हेंस इट पजेसेस काइनेटिक एनर्जी. ये ऑर्बिट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या रहेगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ
एम वी स्क्वायर रहता है, तो हियर वी राइट एम ई वी एन स्क्वायर. ओके, नाउ वी राइट काइनेटिक एनर्जी. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो एम ई वी एन का इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है इसमें से यूज़ करेंगे. यूजिंग इक्वेशन 1 क्या होगा फिर हमारे इक्वेशन का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ई वी एन स्क्वायर. क्या वैल्यू होगा, Z 4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर एन. ठीक है, तो मैं सेकेंड इसमें राइट करती हूँ इसको. देन हियर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू Z अपॉन 4πε0 इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर एन. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू Z ई स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन. दिस इज द kinetic energy of the electron. This equation gives kinetic energy of the electron. Suppose this is equation number 2. Now we will find potential energy of the electron. Potential energy of the electron. So potential energy of the electron is given by potential energy, it is equal to V into minus E. Okay, where V क्या है, where V is electric potential at any point due to charge on nucleus. और माइनस ई क्या है, इट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो अब हम ये केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय E अपॉन आर एन इंटू माइनस ZE. ये ऐसी रहेगी. फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इट इज इक्वल टू 1/4πε0. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस ZE स्क्वायर अपॉन आर एन. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर एन. दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब टोटल एनर्जी कैसे है, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल एनर्जी. थर्ड स्टेप है हमारी टोटल एनर्जी. टू फाइंड टोटल एनर्जी इट इज द सम ऑफ TE इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर एन. ओके, तो ये दो इक्वेशन से अब हम फाइंड करेंगे. देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 8πε0 आर एन, दैट इज ZE स्क्वायर माइनस ट्वाइस ZE स्क्वायर होगा. ठीक है, सो हियर वी विल गेट माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन. ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी की वैल्यू. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन TE. क्या है, माइनस ZE स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर एन. ठीक है, बट अब आर एन की वैल्यू क्या है हमारे पास में, आर एन इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, तो इट इज इक्वल टू ε0 h स्क्वायर अपॉन πme ZE स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. मैं ऐसा लिखती हूँ. ठीक है, अब हम आर एन को इक्वेशन, ये ऊपर के इक्वेशन, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, तो इसको हम पुट करेंगे आर एन को. तो पुट
इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करने के बाद में क्या मिलता है देखो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/8 पाई इप्सिलॉन 0, इसको हम सेपरेट निकालते हैं बाहर। फिर यहाँ पे ZE² अपॉन ये जो RN की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। इट इज़ क्या होता है देखो, नीचे है तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं, M नहीं तो मैं लिख लेती हूँ, अपॉन पाई ME ZE² into N². So we get -1/8 pi epsilon 0 multiplied by Z²E² pi ME E² अपॉन इप्सिलॉन 0 H² N²। आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, ये स्टेप सॉल्व करके नहीं दी है, तो आप भी मेरे साथ अगर सॉल्व करते हो और ये स्टेप लिख लेते हो तो आपको इजी जाएगा। आपके बुक में ये डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। सो टोटल एनर्जी की वैल्यू हमको क्या मिलती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, ये स्टेप डायरेक्ट आपके बुक में दी है, इट इज इक्वल टू -ME Z²E⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0² H², और ये 1/N²। इसको मैंने बाजू में निकाला था, अब इसको मिक्स कर देते हैं। टोटल एनर्जी इज डिनोटेड बाय EN। क्या है, EN है टोटल एनर्जी, तो EN इज इक्वल टू क्या आता है, इट इज -ME Z²E⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0² H² N²। तो आपके बुक में ये इक्वेशन डायरेक्टली दिया है, बीच वाली स्टेप्स हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। तो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, कौन से ऑर्बिट में है, n है इसलिए, इन nth ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम। ओके, समझ में आया। यानी टोटल एनर्जी हमको अगर निकालनी थी था, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी को निकाला, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी को निकाला, और फिर हमने टोटल एनर्जी को निकाला है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय एन अट्रैक्टिव फोर्स, एंड हेंस दिस एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू मेक इट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। समझ में आया ये निगेटिव साइन का क्या मतलब है। तो अगर हम इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं ME, E और H एंड इप्सिलॉन 0 की, तो क्या होता है ये हम देखेंगे अब कि सब्सटीट्यूटिंग, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। कॉन्स्टेंट्स कौन से कॉन्स्टेंट्स है, ये इक्वेशन में ME है, देन E है, देन H है, एंड इप्सिलॉन 0, इट इज़ नोन एज परमिटिविटी, ठीक है। इसके अगर हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर हमारा 5 था, इन इक्वेशन 5 देन वी गेट, क्या मिलता है हमको, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ EN इज इक्वल टू -13.6 Z² N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब इसको हम डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे, आप भी डायरेक्टली, आपने भी ये किया तो भी चलेगा डायरेक्टली। तो अगर हम ये जो कॉन्स्टेंट्स है ME, E, H एंड इप्सिलॉन 0, अगर इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो EN की वैल्यू हमको मिलती है -13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर ये n की वैल्यू हमने n इज इक्वल टू 1 अगर करते हैं तो ये है सबसे मिनिमम एनर्जी, एंड इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम,
ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 हम सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 रहता है, तो इट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, ठीक है। और ऑर्बिट्स विथ हायर वैल्यूज ऑफ n देयरफॉर हायर वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ एटम, यानी इससे ऊपर के जो वैल्यूज रहेंगे हायर वैल्यूज, हायर मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ लगे तो, हायर वैल्यूज के लिए जो क्या बोले कि हम, दे आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द एटम, ठीक है। और इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट इट इज सेड टू बी द nth एनर्जी स्टेट। अगर nth ऑर्बिट में है तो उसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज nth एनर्जी स्टेट, ओके। अब मैं यहाँ पे लगे तो वो भी लिख लेती हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट में है तो उसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज nth एनर्जी स्टेट। समझ में आया। फिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 रहता है और इट इज़ नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, और उसके हायर वैल्यूज़ के लिए उसको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द एटम। और nth ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन अगर nth ऑर्बिट में है तो इट इज़ सेड टू बी इन द nth एनर्जी स्टेट, ओके। समझ में आया। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम अब देखेंगे इन ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो विच हैज़ मिनिमम एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। उसको क्या कहेंगे हम, ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। Then orbits with higher values of n and therefore higher values of energy are called as the excited states of the atom. ओके। थर्ड पॉइंट को देखो, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, nth ऑर्बिट में है, तो इट इज सेड टू बी इन द nth एनर्जी स्टेट, ठीक है। अगर nth ऑर्बिट में है तो nth एनर्जी स्टेट बोलेंगे। और 4 नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू कितना रहता है, 1, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कितनी रहती है, -13.6 EV एंड द एनर्जीज ऑफ द एक्साइटेड स्टेट्स अगर ऊपर जाएंगे तो इट इज़ इंक्रीजेस, यानी -13.6। उसके बाद के सेकेंड ऑर्बिट के लिए रहती है, यानी E2 के लिए रहती है, इट इज़ -3.4 EV रहती है। देन E3 के लिए रहेगी, इट इज़ इक्वल टू -1.51 EV, और E4 के लिए रहेगी, इट इज़ -0.85 EV। ऐसे इंक्रीज होती जाएगी और फाइनली इन्फिनिटी के लिए उसकी वैल्यू रहती है 0, ठीक है। तो ये हमको अब एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको दिखाई देगा, एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करने के लिए आएगा। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम एंड ट्रांजिशन बिटवीन देम फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, n इज इक्वल टू 1 है, तो सीरीज देखो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए लीमेन सीरीज है। यहाँ पे सीरीज के नाम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। n इज इक्वल टू 2 से बामेर सीरीज स्टार्ट होती है, n इज इक्वल टू 3 से पेस्चेन सीरीज स्टार्ट होती है। और रीजन देखो, इंफ्रारेड रीजन, उसके नीचे बामेर के लिए विजिबल रीजन लिखा हुआ है और लीमेन के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन लिखा हुआ है। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी E1 रहेगी, इट इज़ -13.6 EV। n इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी देखो -3.4 EV है, और सो ऑन। अगर ऊपर जाएंगे वैसे एनर्जी लेवल भी कम होती जा रही है, ठीक है। और द एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी लेवल आपको ऊपर कैसे दिखाई दे रही है, क्लोजर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट इज वी से दैट द एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर एज n इंक्रीजेस। जैसे जैसे n को इंक्रीज होते जा रहा है एनर्जी लेवल क्लोजर आती जा रही है, और इट रीचेस अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 0 एज n गोज टू इन्फिनिटी। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है तब E इन्फिनिटी यानी एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट
टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी। उसको क्या कहेंगे हम? एक्साइटेशन एनर्जी। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेकर जाती है या एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने वाली एनर्जी को क्या कहेंगे हम? इट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। उसको क्या कहेंगे हम? एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, एक्साइटेशन एनर्जी समझ में आया? ओके, तो हाइड्रोजन एटम के लिए मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी क्या रहती है? ऑफ n इज इक्वल टू 2 स्टेट रहती है। दैट इज इट इज अब n इज इक्वल टू 2 स्टेट यानी -3.4 है, -3.4 माइनस, और फर्स्ट स्टेट के लिए है -13.6, तो इट इज़ माइनस ऑफ -13.6 मीन्स इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इट इज़ 10.2 EV रहती है एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, समझ में आया? तो यही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ये डेफिनेशन आ सकती है, तो देखो हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, कहाँ से? ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट। और फॉर हाइड्रोजन एटम मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी रहती है? इट इज़ 10.2 EV रहती है। ठीक है, समझ में आया? अब सेकेंड एनर्जी हम देखने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कैसी है? बाइंडिंग एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी है सो दैट इलेक्ट्रॉन को वो फ्री करती है फ्रॉम द न्यूक्लियस। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन देखो, हम पढ़ते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक इट फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए न्यूक्लियस से जो मिनिमम एनर्जी लगती है इट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी, अब हम आगे की जो एनर्जी देखेंगे इट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी एक प्रकार की बाइंडिंग एनर्जी ही है। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज़ ऑल्सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट सो दैट द एटम ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाता है ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद में। तो इट इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी और इट इज़ वन फॉर्म ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। कौन से स्टेट में देने वाले हैं हम? ग्राउंड स्टेट में ऑफ दैट एटम टू सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री। ठीक है, इट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ओके, समझ में आया? तो ये तीनों भी जो डेफिनेशंस है ये आ सकती है एक्साइटेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इट इज़ नोन एज रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन। रिडबर्ग फॉर्मूला के लिए हम कंसिडर करेंगे लेट EM इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, अब इसको mth हायर ऑर्बिट मानेंगे, हायर ऑर्बिट। ओके, और n जो है उसको लोअर ऑर्बिट बोलेंगे। तो En क्या है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth लोअर ऑर्बिट। तो जो बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट है उसको यूज़ करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, जो हायर एनर्जी है माइनस लोअर एनर्जी दैट इज En, इट इज इक्वल टू क्या रहता है? h न्यू। ठीक है, वेयर h इज प्लैंक कांस्टेंट। तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? Em माइनस En अपॉन h हो जाएगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बट हमारे पास में एनर्जी की वैल्यू है। तो हियर एनर्जी फॉर
हायर ऑर्बिट दैट इज EM इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज माइनस, बस वो एनर्जी का ही इक्वेशन लिखना है, बट n के जगह हम m लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये तो है me e⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे m स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और En की वैल्यू क्या रहेगी, En इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth लोअर ऑर्बिट, उसकी वैल्यू रहेगी z स्क्वायर, सेम ही रहेगी, सिर्फ m की जगह हम n लिखेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन जो है ना वही लिखेंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन हमको मिल गए हैं, तो हम सबको सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, अब हमको न्यू की वैल्यू मिलेगी, EM की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, देन EN की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। और H, तो न्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसा रहेगा देखो, न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर आएगा EM की वैल्यू लिखेंगे पहले, माइनस z स्क्वायर me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर m स्क्वायर माइनस z स्क्वायर me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। ये हमको मिला है। अब हम इसमें से इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन है z स्क्वायर me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब, h स्क्वायर, और ये जो h है इसको यानी h क्यूब हो जाता है, वी गेट माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाता है। फिर ये न्यू जो है, न्यू इज क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ एंड न्यू, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, इसमें क्या रिलेशन रहता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, ठीक है। तो सी वेयर c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, c क्या है, स्पीड है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख सकते हैं अभी कि c बाय लैम्बडा, न्यू के जगह लिखेंगे c बाय लैम्बडा z स्क्वायर me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब। अब इसको मैं रीअरेंज करती हूँ, 1 अपॉन n स्क्वायर पहले लिखेंगे, 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये c को अगर हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं, वी गेट 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू z स्क्वायर me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ये मिलता है। बट यहाँ पे जो me⁻⁴ जो है, यानी ये जो टर्म है me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c, ये इसको बोलते हैं RH, यानी इट इज़ नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है। ये जो टर्म है इसको बोलेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू रहती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू रहती है। रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है फिर, RH इज इक्वल टू me⁻⁴ अपॉन 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन अब कैसे बन जाता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू RH, ये टर्म के लिए RH बोलेंगे हम। फिर बचता है सिर्फ z स्क्वायर, ये टर्म में बचता है z स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स
Rydberg formula for atomic spectrum. ओके, समझ में आया क्या है रिडबर्ग फॉर्मूला? 1/λ इज इक्वल टू RH Z square upon 1/n square minus 1/m square, where RH is known as Rydberg constant and its value is 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. ठीक है, समझ में आया? फिर तो यहाँ पे हमारा ये रिडबर्ग फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक देखेंगे. तो ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू.